and how good you are going to be in your profession is going to be decided by the things you are doing today. If I were preparing to become an assistant professor today, then I would do these things. So yeah, hello and a very warm welcome to my channel Pooja Neke. I'm an assistant professor. So in today's video, I'll share my journey, and if I had to start preparing for assistant professor, or if I'm someone who wants to come to the field of academia, then these are some things which I would like you to do. Also, because I'm an assistant professor from last 3 years, so here are some things which I really believe that अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो आज की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग दीज आर सम few things which you must have. And of course there were few things which I would have done differently अगर मुझे पता होता कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करने वाली हूँ. So yeah, here are few tips which I would like to share with you. So if you're planning to come to this field तो आप पूरे तरीके से prepared रहें. So yeah, let's start today's video. See, this video is not going to be about to do PhD, to just qualify UGC NET. Of course, these are mandates. This give you an opportunity to come to the profession, but selection के लिए there are so many things which are required. So basically, if you only think कि NET और PhD से आपका सारी चीज़ sort हो जाएंगी, then you need to listen to me because there is a very big picture which you are missing. Qualifying UGC NET is one milestone. Having a PhD is another milestone, but there are other things जो कि हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, so that you actually become a good teacher. Because to become a good teacher, a good researcher, academia requires you to build yourself in different ways. अगर मैं आज जीरो से स्टार्ट कर रही होती और मेरा गोल होता to become an assistant professor, so there are few things which I would have consciously worked on, and of course there are few things which I wish I would have started earlier. Now starting the things which you should have first is of course UGC NET जो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, so that it becomes very easier for you to at least get your resume selected or to get into the interview process. But of course I wouldn't have made it my entire personality. See, NET is a very very important milestone. अगर आपके पास ये है एटलीस्ट यू आर एलिजिबल तो आप कंसिडर किए जा सकते हैं. आप ऐसा हो सकता है कि ओके नाउ दिस पर्सन इज एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया. वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, करेक्ट? सो टू प्रिपेयर मैं सिलेबस को समझती, मैं PYQs करती, मैं मॉक टेस्ट लगाती, जितने भी जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन सबको कवर करती, मैं एक प्रॉपर स्टडी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती. दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू आर डूइंग, यू विल डेफिनेटली क्लियर द UGC NET एग्जाम. बट इसके एक्सेप्ट भी देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक यू टू हैव. Some skills which I would like you to have to be a good teacher and to sustain in this career. Like the second thing which I would have worked on is personality development, because as a professor, as a teacher, you are constantly communicating with maybe 30 students, 60 students, 100 students, or maybe 200 plus students. And uske except you will be giving presentation, you will be in seminars, you will be in conferences, you will be attending some sessions, you will be speaking to parents, you will be speaking to your colleagues, you will be speaking to your seniors, you will be giving interviews, you will be taking interviews. So there's a lot which requires you to have good personality. Okay, so I would actively work on my communication skills first of all, which is very 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 important. No matter you are an introvert or an extrovert, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, communication skills is something which everybody needs. आपको बात करनी आनी चाहिए. You must know how to share, how to express your emotions, your feeling, what are your thoughts, your perspectives, your opinions. Okay, so communication skill is very important. आपको public speaking भी आनी चाहिए, आपका confidence कैसा है, आपकी body language कैसी है, ये सारी चीजें notice की जाती हैं. आपका voice modulation, आपके etiquettes कैसे हैं, प्रोफेशनल एटिकेट्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंटली आपका आर्टिकुलेशन कैसा है, आपकी लर्निंग स्किल्स कैसी हैं. तो ये सारी चीजें आर समथिंग आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंटीग्रेट इन योर पर्सनालिटी. So here's a simple exercise which I would recommend. Like first what you can do is you can start recording yourself. So जब आप खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं, make sure that आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो which you can explain like for at least 5 minutes, ठीक है, without any script. तो आपके पास बस कोई माइंड में टॉपिक होना चाहिए एंड जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. उसको बोलना शुरू कर दो, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो. लाइक कोई भी आप अपना अकेडमी का कोई टॉपिक ले सकते हैं, और एनी टॉपिक विच यू वुड लाइक टू डिस्कस और विच यू वुड लाइक टू शेयर. बस 5 मिनट से बोलना एटलीस्ट, एंड यू शुडंट हैव एनी स्क्रिप्ट और ऐसे देख के नहीं बोलना है, जस्ट स्पीक इट फ्रॉम योर माइंड. उसके बाद जस्ट गो एंड वॉच योर सेल्फ. आप ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, आप ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ फिलियर वर्ड्स लाइक we do this. तो ये आपको it will what it will do is you will be able to reflect कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं which I wanna work on. Like मैं भी अपनी वीडियोस देखती हूँ, till date I feel कि बहुत सारी गलतियाँ बहुत बार होती हैं. ओके, सो एंड whenever I make a new video I try कि मैं उसमें वो सारी गलतियाँ दोबारा से रिपीट ना करूँ. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एंड अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज. उसके बाद
Now the next thing which I would like you to be good at is of course research writing, research paper writing से, because आजकल के टाइम पे you will be judged कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, रिसर्च पेपर्स कितने हैं. This is how the industry is working, to be honest. I do still believe कि टीचर और रिसर्चर अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग लोग होते हैं. A good teacher might not be a good researcher might not be a good teacher, but you'll have to be both. Trust me, आजकल के टाइम पे you will be judged कि आपके रिसर्च पेपर्स कितने हैं. हायरिंग के टाइम पे देखा जाता है कि आपके रिसर्च पेपर्स कितने हैं, कहाँ पे पब्लिश हैं, एंड यू नो आप कैसी रिसर्च करते हैं. आर यू अवेयर अबाउट द रिसर्च, आर यू अवेयर द रिसर्च नॉर्म्स, हाउ फेमिलियर यू आर विद द रिसर्च थिंग्स. सो रिसर्च पे काम करना शुरू कर देना, रिसर्च को सीखना शुरू कर दो. यूल फाइंड अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज जो आपको एक्सप्लेन करेंगी, जो आपको सिखाएंगी some basics. उसके बाद if you can of course get any help from any of your colleagues, your friends, your teachers, so go get that help and do better in research. And now that you are good in research, try करो कि publish करो अपना research paper कहीं ना कहीं पे, because that is again very very important for you. You can assist someone in their research papers, आप खुद भी लिख सकते हैं. You can pitch your teachers, you can pitch your colleagues. तो उसमें अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट, आई एम स्टिल लर्निंग. तो बट आई रियली बिलीव कि अगर मुझे पहले से पता होता कि रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो मैं बहुत पहले से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती. ऑल आई वॉज ट्राइंग टिल डेट वॉज टू बी अ गुड टीचर. मैंने गुड रिसर्चर बनने का कभी भी कोशिश नहीं करी. सो अब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बहुत ज़्यादा बाहर आ गया. हैव अ लॉट ऑफ वेट टू बी अ गुड रिसर्चर. नेक्स्ट इज टू डू अ PhD. नाउ डोंट डू अ PhD जस्ट बिकॉज यू वांट अ डॉक्टरेट इन फ्रंट ऑफ ए नेम कि डॉक्टरेट लग जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी ईजी जर्नी. बट येस, अभी भी इसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अब हमारे पास बहुत सारे PhD कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. बट आई स्टिल बिलीव कि आपके पास स्किल ज़्यादा होनी चाहिए. तो स्किल के ऊपर आई डोंट थिंक आई कैन पुट द PhD थिंग. PhD, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग PhD जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. दे हैव जीरो इंटरेस्ट, उनके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है PhD करने में, और दे आर जस्ट डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. किसी और से करवा दे रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैम गोइंग ऑन इन द PhD थिंग एज वेल. सो मेक श्योर कि आप PhD बहुत कॉन्शियसली चूज़ करें. जहाँ से कर रहे हैं उसको भी बहुत कॉन्शियसली चूज़ करें, अपने गाइड को, अपने टॉपिक को, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी. क्यों कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. उसको करने में आप अगेन यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी गुड एट रिसर्च, बट यू एटलीस्ट हैव टू बी फेमिलियर विद थिंग्स. अब और एक अच्छा रिसर्चर, बहुत अच्छा, आई डोंट थिंक पॉसिबल हो पाएगा फॉर एवरीवन. बट हाँ, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें. रिसर्च करने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू नो थिंग्स कि हाँ ये कैसी चीज़ है, ये कैसी चीज़ है. एंड इफ यू आर समवन हु इज़ वेरी क्यूरियस, देन ऑटोमेटिकली आपको रिसर्च पसंद आएगी. बट अगेन उसके अंदर फिर डेप्थ में अगेन जब आप रिसर्च पेपर लिखने लग जाते हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्टर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स विच आई हैव टू गो थ्रू. तो या अंडरस्टैंड दैट एज वेल. नेक्स्ट आई वुड हैव ऑल्सो वर्कड ऑन माई टीचिंग स्किल्स. टीचिंग स्किल्स से मतलब देखो, आई हैड बी टीचिंग 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स. तो उनको ऐसे समझाना कि जैसे मैं किसी 5 से या 10 साल के बच्चे को सिखा रही हूँ. उनको कुछ भी नहीं आता है. टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक इन अ वेरी वेरी ईजी वे. एंड ऑफकोर्स द फैक्ट कि आजकल की जनरेशन का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है. सो हाउ यू गोइंग टू इंटरेक्ट, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी और मेथड यू आर गोइंग टू यूज, सो दैट वो आपको सुने, वो आपकी बात माने, सो दैट यू फील कि हाँ यार मैम की क्लास में मज़ा आता है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इस चीज़ में बहुत ही महारती हो गई हूँ और मुझे सब कुछ आ रहा है. मैं अभी भी आई नो कि मेरी टीचिंग स्टाइल में भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है, बट आई स्टिल कीप ट्राइंग. प्रेजेंटेशन इज वर्किंग फॉर मी, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड इज वर्किंग फॉर मी, डिस्कशन इज वर्किंग फॉर मी. आई कीप ट्राइंग, आई कीप एक्सप्लोरिंग कि मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू डू द सेम. थोड़ी एक्टिविटीज इंटीग्रेट कर सकते हो, थोड़ी प्रेजेंटेशन को और अच्छा क्रिएटिव बना सकते हो. आप अपने स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स भी देख सकते हो. यू कैन turn your boring teaching styles into something which is discussion based, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, because students also give you a lot of outputs, and उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है oh my god, okay, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं. ओके, द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन अ क्लासरूम इज कि आप स्टूडेंट से बातचीत करते हो, आपको लगता है ओके दिस इज ऑल्सो अ न्यू पर्सपेक्टिव. दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. आई लव दैट पार्ट जहाँ पे बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करते हैं और मुझे समझ में आता है कि ओके ये भी एक चीज़ है, ओके ये ऐसा भी हो सकता है. आई लव दैट थिंग. नेक्स्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू बिल्ड अ गुड अकेडमिक प्रोफाइल. तो आपके पास एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, ऑकिड आईडी होनी चाहिए, गूगल स्कॉलर हो गया, रिसर्च गेट हो गया. तो जो भी सारी चीज़ें अकेडमिया में आती हैं और आर इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस होना, वहाँ पे आपके लिए पब्लिश करने के लिए रिसर्च पेपर होना लिंक्डइन में, टू बी एक्टिव, टू कीप अपलोडिंग कि आप क्या क्या अकेडमिया की फील्ड में कर रहे हैं. यू हैव टू कीप स्टे अपडेटेड देयर. नेक्स्ट आई ऑल्सो बिलीव AI के बेसिक्स आपको आने चाहिए, टूल्स आने चाहिए. हाउ AI इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर टीचिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ चेंजिंग अ बिग लैंडस्केप.
इन द एजुकेशन इंडस्ट्री एज वेल. सो मेक श्योर कि आपको AI की बेसिक्स पता हो, कुछ टूल्स पता हो, कैसे यूज़ करो टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू एज अ टीचर. तो AI की बहुत सारे आप मतलब हमने देखा होगा सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं, उनसे आप चीज़ें बेसिक सीख सकते हैं. और यू कैन गो योरसेल्फ एंड चेक डिफरेंट एप्स एंड जो भी वेबसाइट्स हैं जो AI के अराउंड बिल्ड हैं, तो उनको एक्सप्लोर करो जाके और नई चीज़ें सीखो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई बिलीव नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So networking is going to give you a lot of opportunities. Is going to help you land a lot of jobs. So LinkedIn के through networking करो, colleagues के through networking करो, attend seminars, go to workshops. और networking करके आपको समझ में आएगा कि what is really happening. आपको समझ में आएगा कि अच्छा अकेडमी में, because see as academic भी आप एक अपने एक चैम्बर में रह सकते हैं कि बिकॉज आपके अराउंड जो सारी चीज़ें हो रही हैं आप उन्हीं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे. सो जब आप लिंक्डइन में देखोगे ना लोगों को करते हुए कि अच्छा ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, ओ माय गॉड अच्छा ऐसा भी है वैसा भी है, माय गॉड पीपल आर मीटिंग हेयर डूइंग दिस, ऐसी वर्कशॉप, ये सारी कॉन्फ्रेंसेस, तो आपको बहुत अलग एक्सपोजर मिले. यू नो आप नेटवर्किंग के थ्रू यू कैन गेट टू नो अबाउट देयर रिसर्च वर्क, देयर प्रोजेक्ट्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंसेस. सो बेसिकली इसका मतलब ये कि जो अकेडमी है इट इज अ कम्युनिटी एंड इट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी टू सक्सीड in your career, and that is a very very harsh truth. So yeah, these are few things which I really believe you must be familiar with. आपको आनी चाहिए या फिर मुझे आती, ये सारी चीज़ें मुझे अभी नहीं आती. आई एम स्टिल बिल्डिंग माई सेल्फ अकाउंट academia. I'm still trying to be a good teacher, a good researcher, a good person, and a good human being, of course. But yeah, see, NET is going to make you eligible to become an assistant professor. It is again a very good milestone, a very very important thing. PhD will make you more qualified, but your ability to teach, your ability to research, your ability to communicate, your ability to learn is going to give you a lot more opportunities. You'll be a good professor, of course. You'll be a good teacher, you'll be a good researcher, you'll be a good human being. So all I want to say is don't wait until you start your job. अभी से इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू कर लो, बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स पॉसिबल जो इवन इफ यू आर नॉट अ प्रोफेसर, इवन इफ यू आर नॉट अ टीचर, आप अभी भी कर सकते हैं. सो बेसिकली स्टार्ट नाउ, बिकॉज जो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हो इन 2 years, 3 years or 5 years, फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे. एंड हाउ गुड you are going to be in your profession is going to be decided by the things you are doing today. Bye bye.